Morning students. Let us start with question number 4 of exercise 8.1. Fourth question is, show that the diagonals of square are equal and bisect each other at right angle. We know this is the property, but here we have to prove this. Okay, so let us start. First of all, draw the figure. It is given that the square is here. This is the square A, B, C, D. Okay. So what is given here? In square A, B, C, D, in square A, B, C, D, diagonals are equal and bisect each other. It means diagonal AC and BD, they are equal. AC is equal to BD. They are bisect each other. So OA is equal to OC and OB is equal to OD. This is given in the question. Now what to prove? Sorry beta, it is given कि diagonals are given. Only diagonals are given. AC and BD are diagonals. This is given. Now we have to prove that diagonals are equal. So AC is equal to BD and they bisect each other, means OA is equal to OC and OB is equal to OD. This thing we have to prove here. Okay. So let us start with the proof. अब हमें प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स हैं दे आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. अब इक्वल और बाइसेक्ट, पहले इक्वल हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये वाली जो दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, अगर हम इसके सेपरेट फिगर ड्रॉ यहाँ पे करते हैं तो द फिगर इज लाइक दिस. दिस इज ABD and this is BAC. If we prove these two triangles is congruent, then BD is equal to AC. तो ये हमारे डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे. सबसे पहले हम इसी को करते हैं. In triangle ABD and triangle BAC, we know that all the sides are equal. स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल हैं तो ये इक्वल हो गया. Then this AB and BA is common. और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास क्या होती है कि स्क्वायर का एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री. ईच एंगल इज 90. तो एंगल A एंड एंगल B आर 90. नाउ द रूल इज साइड एंगल साइड. सो लेट अस स्टार्ट. AD इज इक्वल टू BC. ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. ठीक है, तो हम रीजन यहाँ पे लिख देते हैं. साइड्स ऑफ square are equal. Then angle A is equal to angle B, each 90 degree, and AB is equal to BA. This is common. Now the rule is side angle side. So therefore by SAS rule, triangle ABD is congruent to triangle BAC, and if these two triangles are congruent, then BD is equal to AC. This is by CPCT. तो ये हमारा एक रिजल्ट जो है इसका प्रूव हो गया है. डायगोनल्स इक्वल आ गए. नाउ वी हैव टू प्रूव that they bisect each other. अब अगर हमें ये प्रूव करना है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि अब हम यहाँ पे प्रूव कर दें दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ये भी प्रूव करना है कि वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स वी ऑल्सो हैव टू प्रूव दैट
this angle 1, 2, 3, 4. Angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4 is 90 डिग्री। ये भी हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि दे बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हम ये वाली जो दो ट्राइंगल्स हैं AOB एंड COD, अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये हमारे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, अब यहां पर हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू CD, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये एंगल हमारा लेट इट बी 5 इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स कि इसकी सभी साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, और अगर अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल हैं तो AC क्या होगी हमारी ट्रांसवर्सल। सो एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इक्वल, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। नाउ वी हैव द रूल। अब हमारे पास क्या है, एंगल साइड एंगल ASA। सो एंगल 5 is equal to angle 6, alternate interior angles. AB is equal to CD, sides of square are equal, sides of square are equal, and angle 7 is equal to angle 8, again alternate interior angles. Now this is ASA. So therefore by ASA rule, triangle AOB is congruent to triangle COD, and if these triangles are congruent, it means OA is equal to OC, OA is equal to OC and OB is equal to OD. This is by CPCT. एक और हमारा जो हमें प्रूफ की रिक्वायरमेंट थी वो भी हमारा प्रूफ हो गया। Now only one thing is left, and that is we have to prove कि they bisect each other at 90 डिग्री। अब हमें ये एंगल 90 डिग्री यहाँ पर प्रूफ करने हैं। अब उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये जो ट्राइंगल है हमारी AOB, दिस वन ट्राइंगल, एंड AOD, इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हमारा एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल आ जाएगा। बट एंगल 1 और एंगल 4 हमारा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर मीन्स कि देयर सम इज 180, एंड बिकॉज दे आर इक्वल तो आपका एंगल 1 हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अब अप्लाई करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल AOB and triangle AOD, okay, in these triangles, अब हमारे पास यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है, साइड्स हमारे पास इक्वल है। OB इज इक्वल टू OD हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं इक्वल है, एंड दिस OA इज कॉमन। तो हमारे पास रूल क्या बन गया यहाँ पर, SSS। So start writing, OA is equal to OA, this is common, AB is equal to AD, sides of square are equal, and OB is equal to OD, this is already proved. Now the rule is SSS. So therefore by SSS rule, triangle AOB is congruent to triangle AOD. Therefore angle 1 is equal to angle 4 by CPCT. But angle 1 plus angle 4 is 180 degree. This is by linear pair.
क्योंकि ये हमारा लीनियर पेयर यहाँ पर बन रहा है। एंगल 1 एंगल 4 हमारे पास इक्वल है, तो वी कैन रिप्लेस 4/1। दिस इम्प्लाइज, हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे एंगल 1 इज 90 डिग्री। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आ गया कि हमारा एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, बट हमें सबको प्रूफ करना है, तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा इससे। अब इस फिगर में जब हम देखते हैं तो हमारे पास हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन इज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एंगल 1 जो है वो हमारा कितना आया है 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल 4 भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। अब 1 और 3 एंगल 1 90 है, तो इसका मतलब एंगल 3 भी कितना हो गया 90 हो गया। एंगल 4 90 है, तो एंगल 2 भी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। सो अब मैंने यहाँ लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दे आर 90 डिग्री, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, दे आर ऑल्सो 90 डिग्री। और वी कैन से कि हमारे सभी एंगल्स जो हैं वो कितने हैं 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो जो अब हमने रिजल्ट्स निकाले थे, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट था। ओके, मैंने इसको इक्वेशन का नाम दे दिया, ये हमारा सेकंड रिजल्ट है, और ये जो भी हमने प्रूफ किया दिस इज आवर थर्ड रिजल्ट। फ्रॉम दीज 3 रिजल्ट्स क्या हमारे पास कंक्लूजन निकला कि डायगोनल्स आर इक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, अब हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, what we conclude, diagonals of square are equal and bisect each other at right angle, hence proved. Okay, so this is question number 4. Now let us start with question number 6. Sorry, question number 5. In question number 5, show that if the diagonals of quadrilateral are equal. Now it is given, if के बाद जो statement होती है that is given. If the diagonals of quadrilateral are equal, quadrilateral given है, उसके diagonals equal हैं, they bisect each other at right angle, और वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं 90 डिग्री पे, देन इट इज स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन का ये कन्वर्स है। फोर्थ में हमें प्रूफ करना था कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। नाउ दिस क्वेश्चन इज द कन्वर्स ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। जो हमें प्रूफ करना था फोर्थ में वो अब हमें गिवन है, एंड वी हैव टू प्रूव कि दिस इज स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर ही यहाँ पर प्रूफ करना है। दिस इज स्क्वायर ABCD। गिवन इज इन क्वाड्रिलेटरल, दिस इज द सिंबल फॉर क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD diagonals are equal, means AC is equal to BD. They bisect each other. What it means? OA is equal to OC and OB is equal to OD. Each other at right angle. हम कुछ नेमिंग यहाँ पे एंगल्स की कर देते हैं. Let it be 1, 2, 3 and 4. And angle 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to 4. is 90 डिग्री, ये हमें गिवन है. Now what to prove?
ABCD is a square। अब स्क्वेयर अगर हमें प्रूफ करना है तो स्क्वेयर की ये सब प्रॉपर्टी स्क्वेयर की हैं, बट इसके साथ साथ स्क्वेयर की प्रॉपर्टी हमारे पास और क्या होती है कि स्क्वेयर की सभी साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। इन स्क्वेयर ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा कि स्क्वेयर की सभी साइड हमारी इक्वल हैं, और अगर इसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी देन दिस इज स्क्वेयर। सो लेट अस स्टार्ट। अब क्वाड्रिलेटरल में हमें प्रूफ करना है साइड्स को, तो हम सब ये जो 4 ट्राइंगल्स हैं इन 4 ट्राइंगल्स को हम एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब देखो हमारे पास सब कुछ है, हमें गिवन है ये 90 डिग्री एंगल है, हमें पता है OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। तो रूल क्या हो गया, साइड एंगल साइड। OA is equal to OC, this is given. Angle 3 is equal to angle 1, each 90 degree, and OB is equal to OD, this is also given. So by SAS rule, triangle AOB is congruent to triangle COD, and if these two triangles are congruent, it means जो sides हैं हमारे पास AB और CD ये हमारी क्या आ गई, इक्वल by CPCT। इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो हम इसको हम एक इक्वेशन का नाम भी दे देते हैं। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम ये वाले 2 ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल AOD एंड BOC, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, सेम रूल हमारा यहाँ पर भी आएगा क्योंकि हमारे पास OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, each 90, this is given, and OD is equal to OB, सेम बिल्कुल जो हमारा ऊपर वाला था पार्ट। So again the rule is SAS, so therefore by SAS rule triangle AOD is congruent to triangle BOC, and if these two triangles are congruent it means कि ये जो sides हमारी AD और BC ये भी हमारे पास क्या आ गई, इक्वल। AD is equal to BC by CPCT, and let us consider this as equation 2, ठीक है। अब ये तो आ गया, बट अब हमें चारों को इक्वल प्रूफ करना है, तो अब हम एक और यहाँ पे ट्राइंगल ले रहे हैं। अब हम ये वाले 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, AOB एंड ट्राइंगल AOD, क्योंकि अगर हम ये 2 ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमारी AB और AD इक्वल आ जाएगी, और अगर AB और AD इक्वल आ जाती है, ABCD के इक्वल आ गई, और हमारी AD जो है वो BC के इक्वल है, इट मीन्स कि इन तीनों इक्वेशन से हमारी चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। सो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, हमारा सेम रूल लग जाएगा। हमारे डायगोनल्स OB एंड OD आर इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 90 डिग्री एंड OA इज कॉमन, तो सेम SAS रूल हमारा यहाँ पर लग रहा है। नाउ इन ट्राइंगल AOB and triangle AOD, OA is equal to OA, this is common, angle 2 is equal, angle 3 is equal to angle 2, each 90 degree,
and OB is equal to OD. This is given. So again the rule is SAS. So by SAS rule, ट्राइंगल AOB, मैं एक फिगर भी यहाँ पे दोबारा से बना रही हूँ ताकि हमें सॉल्व करना इजी रहे. ABCD. Triangle AOB is congruent to triangle AOD, and if these two are congruent, it means AB is equal to AD by CBCD. And let us consider this as equation third. So from first, second, third, from equation first, second and थर्ड, अब हमारे पास जो पहले की जो दो इक्वेशंस हैं उनको मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे रफ में. दिस इज अ रफ पार्ट. बार बार पेज हम नहीं टर्न कर सकते हैं. एक इक्वेशन हमारे पास थी AB इज इक्वल टू CD. फिर हमने प्रूव किया AD इज इक्वल टू BC. ठीक है, एंड दिस इज थर्ड. अब देखिए आप, ये रफ पार्ट है हमारा. AB is equal to CD, AB is equal to AD and AD is equal to BC. It means कि हमारी चारों साइड्स के आगे ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एक दूसरे के. AB is equal to CD या BC लिख सकते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया कि ऑल द फोर. नाउ लेट अस कंसीडर दिस एज इक्वेशन फोर्थ. दिस इज आवर इक्वेशन फोर्थ. तो अब हमारे पास ये जो फोर इक्वेशंस बनी हैं, इन इक्वेशन से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं. दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ये हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है. ओके, और हमारे पास फाइनल रिजल्ट हमने यहाँ से क्या निकाला कि इसकी ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. तब प्रॉपर्टीज को अगर हम रिकॉल करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल जिसमें हमारे पास डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर और उसकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं, वो हमारे पास प्रॉपर्टीज किसकी थी? रोम्बस की. इट मीन्स कि ये क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो गया? रोम्बस. सो in quadrilateral ABCD, diagonals are equal and bisect each other at 90 degree and all the four sides are equal. So therefore ABCD is a rhombus. अब ये हमारे पास rhombus बन गया. Now what we have to prove? We have to prove that कि ABCD is a square and we know that square is a special rhombus. स्पेशल रोम्बस है, कैसा है? जिसमें रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, एक एडिशनल प्रॉपर्टी और होगी, और वो क्या होगी कि इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ रोम्बस इज 90 डिग्री देन इट इज स्क्वायर. इट मींस कि हमें अब इस रोम्बस का एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, और वो एक एंगल हमारे पास क्या होगा? हम किसी भी एंगल को 90 डिग्री यहाँ पे प्रूफ करते हैं. प्रीवियस भी हमने क्वेश्चन में ये वाला सेम कॉन्सेप्ट यूज किया था. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर कि अब हम ये दो ट्राइंगल्स को ये BAC एंड ABD, अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हमारा एंगल A एंगल B क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा. एंड इफ दे आर इक्वल एंड अब इनका हमारे पास जब ये इक्वल है तो ये अब हमारे पास कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं.
पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पे हमारे पास, तो इसका मतलब हमारे पास ये एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो अब ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये भी होगा कि अब ये हमारा यहाँ पे पैरेलल कैसे आया, इट मीन्स कि हमें इनको पैरेलल भी प्रूफ करना पड़ेगा। अब पैरेलल कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो देखिए आप। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, रिजल्ट में हमने ये प्रूफ किया है कि ये और ये एंगल हमारे पास क्या है, these two triangles are congruent. In the similar way we can also prove that angle AOD and BOC are congruent. हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिमिलरली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हमने फर्स्ट में किया है। Here triangle AOD is congruent to triangle BOC by SAS rule. By SAS rule, these two triangles are congruent, and if these two triangles are congruent, it means कि हमारा ये एंगल, इसको हम यहाँ पर कुछ नेम दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं इसकी, let it be 1 and this angle is 2। ठीक है, हम इस फिगर में, मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ इधर। 1 2 हमारे पास ऑलरेडी है तो इसको हमने कुछ और नाम दे दिया, सॉरी, दिस इज 5 एंड दिस इज एंगल 6। द रीजन इज, अब ये एंगल कैसे हैं, जब अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल्स इक्वल हो गए, और ये इक्वल एंगल हमें कैसे नजर आ रहे हैं, एक लाइन के दो अपोजिट साइड पे, इट मीन्स कि दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये हमारे पास क्या हो जानी चाहिए, पैरेलल लाइन। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पर आ गई पैरेलल लाइंस। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो देयरफॉर angle 5 is equal to angle 6 by CPCT, but they are alternate interior angles. Okay, and if they are alternate interior angles, therefore AD is parallel to BC. ठीक है, अब हमारे पास ये रिजल्ट यहाँ से आ गया और इसको हमें ये ध्यान रखना है, AD हमारा BC के पैरेलल है। नाउ अब जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, सेपरेट फिगर्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज ABD and this is BAC, and in these two triangles AB is equal to BA, this is common, AB is equal to BA common, AD is equal to BC, हम ऑलरेडी ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, AD is equal to BC, रीजन हम साइड में लिख रहे हैं और ये हमारा ऑलरेडी प्रूफ्ड है, एंड BD is equal to AC, डायगोनल्स हमें इक्वल गिवन है। सो ऑल द थ्री साइड्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स बाय SSS रूल ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC, and if these two triangles are congruent तो A को कौन ओवरलैप करेगा, ये B एंगल। सो एंगल A is equal to एंगल B by CPCT। ठीक है, बट एंगल A प्लस एंगल B is equal to 180 degree. Why their sum is 180 degree? Because AD is parallel to BC. मेन फिगर में देखो AD और BC पैरेलल हैं, जब ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब एंगल A और एंगल B क्या है हमारे पास, को इंटीरियर एंगल। रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स। अब B और A इक्वल है, सो वी कैन रिप्लेस B बाय A. So twice of angle A is
180 और वी कैन से एंगल ए इज 90 डिग्री। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि रोम्बस ABCD के अंदर हमारा एक एंगल 90 डिग्री आ गया। हो गई हमारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई कंडीशन जो है। सो इन रोम्बस ABCD एंगल A इज 90 डिग्री। ठीक है, हेंस ABCD इज अ स्क्वेयर। वाई इट इज स्क्वेयर? क्योंकि मैं फिर से एक बार प्रॉपर्टी रिपीट कर रही हूं, इन रोम्बस इफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज स्क्वेयर, क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती हैं स्क्वेयर की और रोम्बस की, सिर्फ एक ये प्रॉपर्टी वहां पे एडिशनल आ जाती है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या होता है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर वहां पे वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री देन इट बिकम्स स्क्वेयर, और वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ओके, सो इसके साथ ही क्वेश्चन हमारा खत्म हो रहा है, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।